Apart from winning, I understand that it's not all about winning any competition. It's all about the participation and the things which you learn. So yeah, You have to define what moot court is, and it's certainly a setup which is a bit different from court, and in that particular setup, the judgment is not given. So both the sides represent themselves. or professor calling your name suddenly. Because I have a belief in myself that I can handle any situation. Oh my god. I met a Supreme Court advocate right now. I know that I have knowledge with me. I know that I am a confident person. सिर्फ एजुकेशनल ट्रिप नहीं होता है, उसमें बहुत सी मेमोरीज होती हैं. हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द लीगल वाइब्स. दिस इज मी कोमल एंड यू आर वाचिंग द लीगल वाइब्स. Today we are having a session of Q&A. My name is Ishan Parmar and I am from BA LLB third year. Okay, let's start. Yes. Sure. Okay. The first question is, how different is law school from what you imagined before joining? So first of all, I am from a science background. So I haven't imagined that I will study in particularly this law field only. So when I came to the Parul University, I got to know that there are not only law thing which is related over here. We have design building, so means professional arts and everything is going on. So I personally feel that there is a lot of space in this particular university that we can do apart from law. And I feel that along with law, we have to learn many different skills as well. So yeah, it is a very good experience for me to explore such new things. And yeah, I haven't imagined such things right. Okay. The next question is, have you participated in any moot courts or legal competition yet? Yes, well, I have been through many competitions, for example, intra-moot court competition, and apart from that, right now I'm also participating in the trial advocacy competition. Even before, not only about the competitions of moot court, I personally feel that the preparation is more important before that particular moot court, because when you prepare, you got to know that how weak you are or how strong you are in any particular field. So yes, competition is important to participate, but at the same time you have to think that which competition you have to participate based on what you want to become. For example, if you want to become a good orator, or if you want to become a person who is particularly interested in the corporate field, so you must get focused that you must have to participate either the moot court competition, or you must start thinking about any particular competition which is related to that field. So that's more appropriate. How is your experience in moot court? Well, I have been through several moot court competitions, and when I was introduced to such a setup that it's quite different from the court, I got to know that okay, that is what the strategy which I have to imply at that particular point of time, so as to understand okay, this is the phenomena which is happening over there. So when I have given such competitions, I got to know that first of all, it's not all about the knowledge which you have regarding law. It's something much about that. For example, you must know that how to implement limited knowledge in that particular situation. Apart from that, communication skills also plays a huge role over there, because if you are not confident about your communication skills, you might flutter while you're speaking. So that's one thing. And yeah, I learn a lot of things, because apart from winning, I understand that it's not all about winning any competition. It's all about the participation and the things which you learn. So yeah. Okay. So right now we have a lot of juniors who watching my channel. Correct. So if you have to define what moot court is, and the juniors who is watching you, what lesson you tell them? See, if you look at the definition of moot court, it's certainly a setup which is a bit different from court, and in that particular setup, the judgment is not given. So both the sides represent themselves. But if I look from my perspective, I think that it is a platform where you can commit mistakes, you can do whatever you have within. For example, if I am having doubt whether I can speak at that particular point of time, I should become the mooter, and I will give my best at that point of time. So you must think that it's not about a competition, it's about a platform where you can showcase your skills. If you think that you are better in research field, you must choose researcher at that point of time. And after doing the researcher work, you must also start doing mooting skills as well, because it's not all about the research work, or it's not all about the communication skills. It goes hand in hand. So therefore, it's very important for doing such things together. Okay. What are the mistakes you have done when you are first doing the moot court? Oh, well, I don't have knowledge regarding that this is actually what we have to do. So means I just got into there that okay, I will collect all the materials, and whatever I have, I will just do it. But eventually I got to know that okay, no, there are steps which I have to do step by step. I just have to work on my research skills, because see, we do research when we don't know from Google, from Wikipedia, and from these sites, as we think that okay, these are some great sites and everything. But after researching, I got to know that okay, there is Manupatra, there is SCC online, and there is also a way to study that. So
For example, if I give you the example of writing any exam, right? We just prepare, okay, that's the book and we have to study and this is the exam it is coming. But if we think about what about the strategy, what answers do the Answer teacher really writing. want? Or how can I write my answer? For example, if I can write the answer with blue and black pen, I can write it in points. I can also write one quote and I can relate the judgment. So it would be more beneficial for me. But how will I came to know that just after doing such mood court Experience. from, So means from that only I will know. So I just want to tell all the juniors and anybody who is interested in this field that kindly explore and do whatever you are doing, but do with strategy, because that's what is more important for you. Okay. The next question is, have you visited a courtroom yet? And what did you learn from that experience? Yeah, I have done several internships, and while I was doing internship with the courtroom, I personally feel that the etiquettes and the ethics which any professional person carry, that's very important, because I see many judges which are not that much punctual at the time. Sometimes we see that, okay, we have to wait for the judges. Sometimes we also wait for the advocate. So that professionalism matters. So if I will become a future lawyer by any chance, then I will definitely mark such points that I will be punctual. I will also dress properly, because dressing sense is very important. Apart from that, usually what we think is that if we study more and if we have knowledge of every aspect, then maybe we can give good judgments, or we will have a good knowledge of law. But practically speaking, I can think that judges or advocates is not all about the knowledge. It's all about how we implement them at that particular point of time. So therefore, presence of mind is very important. And I personally feel that apart from ethics, communication skills and presence of mind, it's about how good you are as a human being. So humbleness and all those qualities plays a huge role, because it's all about the answers which you carry while defending in the argument. So if somebody is very strict or somebody is very in a rude tone they are talking, so it's not good at that point of time. You must also carry some demeanor while you are speaking. So that's very important, I mean. Okay. The next question is, what is one non-academic skill every law student must develop? Well, it depends how well you are prepared with that particular skill. For example, as what I have mentioned regarding the communication skills, apart from that, you also should develop such skills like self-confidence, because these are very soft skills, like when you are in a public and suddenly you've got an opportunity to perform something. So at that point of time, a law student should be very much confident in himself that I can perform anywhere where I want to do. For example, if I want to do singing by any chance, it's not about that I am a law student, I can't do something. It's all about the confidence which you carry. And what habits should law student avoid from the very beginning? see, usually law students think that it's okay not to attend the lectures. But I believe that attendance is very important. Not because that we have to fulfill the 75% criteria. It's about the discipline which we carry. So I believe that in the first year, it's very important to explore everything. You must see different things. You must also spend some time with your friends, making interactions and everything. But at the same time, you must think that you must attend classes regularly, because that is the very beginning of your career, that you are disciplined, you are dedicated to your work which you want to carry in the future. And apart from that, you must start having some books with you every time, because it's not about that you are just going to the classroom and just attending the lectures. Because if you are doing such process, then it will be like you are just preparing for an exam, and after a few months you are forgetting whatever you have learned. Because if, for example, if a 4th or 5th year student is asked about the subjects of the first year or first semester, they might think that okay, we have an idea, but we don't know exactly what it is, just because they have not done the revision. So whatever you study, it's very important to revise and to interact with your law students, because discussion is very important at that point of time. Because I believe that without discussion, it's about just having the knowledge, and with time it will spare away. So yeah, these two things are very important. Okay. The last question is, what is more stressful, Viva, internals, or professor calling your name suddenly? Okay, so I mean, personally for me, nothing is stressful, because I have a belief in myself that I can handle any situation. Oh my God. It depends upon you. For example, if you are comfortable with the person, or if you are not comfortable. For example, if I met any Supreme Court advocate right now, I know that I have knowledge with me. I know that I am a confident person, and I know that I can handle that situation. Then why the stress is there? For example, Viva.
we are stressful when we are not aware that okay what questions might be asked, but why we are not aware? Just because we haven't studied. I have to make a routine that I will study, I will play, I will do these things and I will do things. If I am doing everything, there is no scope of any stress. Why should I be frustrated of any teacher asking me some questions which I don't know? Even if I don't know whatever knowledge I have, I should have to implement that things, because ultimately it's not about marks. It's about the way you speak and it's about the knowledge which you carry. So if you think about marks and if you think about the tensions which a professor has, even professor is not perfect. He's also a student in progress and he's having any post right now. So I believe that you must have confidence and you must think that okay, it's a process and I am committing mistakes and I will do this and I will do that and I will cope up with that. So you must not focus on stress, you must focus on the process and ultimately that stress will go on. ओके लाइक प्रीवियसली हमने बहुत सारे ट्रिप्स अटेंड किए हैं. बिल्कुल. वो होता सो कॉल्ड एजुकेशनल ट्रिप है लेकिन वो क्या होता है हमको भी पता है. बिल्कुल. तो थोड़ा इलेबोरेट करो बच्चों को कि भाई ट्रिप्स में जाओ, फन करो. वो सिर्फ एजुकेशनल ट्रिप नहीं होता है, उसमें बहुत सी मेमोरीज होती हैं. तो लाइक उसको थोड़ा मस्ती में एक्सप्लेन करो. जैसे कि मतलब पहली मेरी भी जो ट्रिप्स हुई थी अहमदाबाद या कहीं पर भी, तो मेरा तो ऐसा था कि मतलब जैसे ही बस में गए सबसे पहले जाके गाना बजाना है और डांस करना है. तो बस यही था. मतलब अब क्योंकि अब जब ट्रिप में आया तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई का क्या, एकदम चिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रिप्स होती हैं मेमोरीज क्रिएट करती हैं लेटर ऑन. तो जितने भी जने देख रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रिप्स में जाओ मेक श्योर कि आप पूरा एंजॉय करो. वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहता है ना कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई का क्यों सोचूंगा? अगर मैं वो सोचने लगूंगा तो मैं पूरा स्ट्रेसफुल रहूँगा. अभी जब मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा प्रेजेंस होना चाहिए, और उस प्रेजेंस को अच्छा करने के लिए मुझे मेक श्योर करना है कि मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दूँ. चाहे ट्रिप हो तो ट्रिप को एंजॉय करो, एंजॉय करना पूरी तरीके से करो, मस्ती करो, टीचर्स को भी इन्वॉल्व करो, टीचर्स से भी डांस करो, गाना गाओ, ऐसा इस टाइप से. क्लासेस बंक करते हो? यूजुअली तो मैं नहीं करता, पर करना चाहिए. करना चाहिए. उसमें भी अलग ही मजा है. क्लास बंक करना चाहिए. हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं क्लास बंक करने के लिए. ठीक है, लेकिन 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए. टीचर्स के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए? लाइक अभी हम ऐसा है कि प्रोफेसर है, वो क्लास के लिए प्रोफेसर है. Correct. बाकी तुम्हारा कैसा रिलेशन है बाकी टीचर्स के साथ? एंड इंस्पिरेशन के अलावा हमको कैसे लेना चाहिए प्रोफेसर्स को? बिल्कुल बिल्कुल. मेरा ऐसा मानना है कि जैसे टीचर्स तो ठीक है, मतलब एक रिस्पेक्ट अलग होती है कि जैसे हाँ ये प्रोफेसर हैं वगैरह वगैरह, बट हमें उसको अपने फ्रेंड्स की तरह लेना चाहिए कि हाँ मतलब ये हमारे एक जैसे भैया हैं, या अगर हमारी एज के हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दीदी पढ़ा रही है, इस टाइप से. तो जब हम इस टाइप का रिलेशन रखेंगे तो हम उनसे मतलब कभी डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं कि यार ये चीज़ मैम ऐसा करना चाहिए या सर ऐसा करना चाहिए. अगर हम ये करेंगे कि नहीं वो तो प्रोफेसर हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो डाउट्स होते हैं या हमारी जो मतलब फीलिंग्स होती हैं किसी सब्जेक्ट को रिगार्डिंग या पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी, तो हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि क्या मैं इससे पूछूँ या ना पूछूँ. तो ये अगर आप इस टाइप की मेंटलिटी रखेंगे कि वो प्रोफेसर हैं और हम उनसे करें तो आप काफ़ी जगहों पर बोल नहीं पाएंगे. तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि नहीं ये मतलब मेरे ही मतलब भैया हैं या सीनियर हैं जो बस पढ़ा रहे हैं. तो आप अगर ऐसा फ्रेंडली रिलेशन रखोगे तो काफ़ी हेल्प रहेगा. और अपार्ट फ्रॉम डैट कि हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उसके बाद भी आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि अच्छा आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसमें आपने क्या क्या गलतियाँ करी है, आपको क्या क्या सीखने को मिला जिस कारण से आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से आपकी जो स्टाइल है वो हमें हेल्प कर रही है या इस चीज़ों में हमें लगता है कि इसमें डेवलप करना चाहिए. हम उनसे इंटरेक्शंस करेंगे तो कभी हमें फ्यूचर में हमें भी हेल्प करेगा. अगर अभी जूनियर्स का एडमिशन हुआ एंड वो अभी डे 1 पे उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो अपने क्लासमेट से कैसे इंटरेक्ट करे या मूड कोर्ट में कैसे कंपटीशन में कैसे पार्ट ले. अदर देन मूड कोर्ट और भी हमारे कॉम्पिटिशन्स आएंगे उसमें कैसे पार्ट ले. उनको कॉन्फिडेंस का कुछ पता नहीं है. ठीक है, तो वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं कॉन्फिडेंस? अगर तू भी कभी फर्स्ट ईयर में था तो लाइक तूने क्या क्या ऐसा हेल्प किया तेरे को कि वो सब चीज़ें तू जूनियर्स को बता सके? अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में आते हैं स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि अच्छा मतलब इस टाइप से बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर इस टाइप से मतलब इतने सारे लोग हैं, ये सब चीज़ें कर रहे थे. हमें देख के एकदम से लगता है कि अरे मतलब मैं तो अभी स्कूल से निकला हूँ, अब यहाँ पर आके ऐसी जगह पे मतलब कैसे करूँगा, मतलब एकदम से नर्वस हो जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये भैया या ये दीदी तो ये परफॉर्म कर रहे हैं और मैं तो इतना कैपेबल हुई नहीं एकदम से, मैं तो अभी आया हूँ, मैं देख रहा हूँ ये क्या है मतलब. तो हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं. तो एट दैट पॉइंट हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ठीक है मैं भी अभी आया हूँ, धीरे धीरे मैं भी कर लूँगा. तो करने की प्रोसेस क्या है? देखिए ऐसा है कि जब भी आप अटेंड करें तो आप ये सोच के मत करें कि ये इस इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये समथिंग. ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. तो आप धीरे धीरे लोगों से मिलें और लोगों से सुने उनके ओपिनियन. ऐसा नहीं है कि आप मतलब शर्माएं कि नहीं ये लड़की है या लड़का है, भैया मैं कैसे बात करूँगा इनसे. आप जस्ट जाइए. आपको मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन है तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना आना चाहिए. अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एम्बिवर्ट होना आना चाहिए. अगर आप हर जगह मतलब कहीं भी जाके घुस जाएंगे तो कभी वो भी प्रॉपर नहीं रहेगा. तो मेरे को भी डिफ़िकल्टीज हुई थी स्टार्टिंग में. मेरे को भी लगता था अरे यार ये कैसे होगा, पर धीरे धीरे मैंने मतलब लोगों को सुना, मैंने जाना कि अच्छा इस टाइप से होता है. और
एक पर्टिकुलर एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा चुनें। अगर आपके सर्कल में ऐसे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल बहुत ही लेज़ी हैं या इनडिसिप्लिन है, जिनका कोई एम ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कि जस्ट है कि हाँ बस आए यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड करना है, करेंगे और बस मस्ती करेंगे ये सब, तो इवेंचुअली क्या होगा, समय के साथ साथ आपको पता चलेगा कि अगर मैंने पहले ध्यान दे दिया होता कुछ चीज़ों पर तो फिर बाद में मुझे दिक्कत नहीं आती। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग चुने जो मतलब बहुत ही डेडिकेटेड हों एम के लिए या बहुत ही मतलब डिसिप्लिन हो, तो कि आप अगर फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होगा तो उनके लाइफ का पर्पस हो, गोल पर्पस होगा, आपके भी आइडियाज अच्छे होंगे और वो इवेंचुअली आपको हेल्प करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे होता है, एक्सपीरियंस के साथ होता है, पर हाँ आपको स्टार्ट तो करना चाहिए। ओके देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उनका शुरू से फिक्स होता है लाइफ में कि भाई मेरे को तो एडवोकेट बनना है, मेरे को जुडिशरी देना है, लाइक वो वाले लोग, ठीक है, शुरू से उनका फिक्स है। और दूसरे लोग वो होते हैं जिनके पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया भाई कि तुम लॉ पढ़ो, लॉ कॉलेज में जाओ, उनको ग्रेजुएशन करना है। अब उनको पता नहीं है कि उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, लाइक हाँ ऐसा होता है काफ़ी बच्चों के साथ कि मतलब उनका ऐसा फिक्स नहीं होता कि मतलब लॉ ही करना है और एकदम से मतलब बस उन्हें कॉलेज में एनरोल किया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही केस है कि मेरा भी ऐसा कोई फिक्स नहीं कि लॉ करना है, आगे हो सकता है मैं एक्टर बन जाऊँ, आगे हो सकता है मैं कुछ और बन जाऊँ, कुछ डिपेंड नहीं है। बट स्टिल जब आप जैसे एडमिशन ले लिया आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये सोचते हुए कि मतलब ठीक है अभी मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ, तब आपको सिर्फ स्टिक नहीं रहना है कि अब मैं लॉ ही करूँगा। या अगर फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर ही हो तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे इंजीनियरिंग करनी हो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। आप जब ऐसा चलोगे आपको पता चलेगा कि नॉलेज हर जगह। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपसे बात कर रहा हूँ तो अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो हो सकता है मैं पोइट्री में थोड़ा सा ट्राई करूँ, हो सकता है मैं बाद में एंकर बन जाऊँ, यहाँ पर एंकरिंग भी होती है यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है मैं उसमें थोड़ा सा ट्राई करूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें काफ़ी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, हाँ जैसे आप करते हो तो इससे मतलब ये भी बढ़िया फील्ड है इस टाइप से। तो इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बच्चों को नॉलेज नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक मेंटलिस्ट करके भी एक फील्ड होती है जिससे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देख के ही पता कर लूँ कि अच्छा आप क्या सोच रहे हो, या मैं आपको ऐसे छूँ और मुझे पता चल जाए कि अच्छा आपके विचार ये हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैं अपने लॉ में इम्प्लीमेंट करूँ कि कोई भी क्लाइंट आया मेरे पास और मुझे बस उसको देखकर मुझे पता चल गया कि अच्छा ये क्रिमिनल है या नहीं है, और फिर बाद में मैं अपने स्किल से, अच्छा साइकोलॉजी भी हेल्प करती है। जैसे आपको अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ऐसा पाओगे कि अच्छा ये बॉडी किस जेस्चर में, जैसे आज मैं बैठा हूँ तो अभी मैं आपकी तरफ इंक्लाइंड होकर बैठा हूँ तो मैं आपकी तरफ मतलब इंटरेस्टेड हूँ कि कम्युनिकेशंस क्या चल रही है। परंतु फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, तो अगर मैं ऐसे ऐसे कहीं भी देख रहा हूँ तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंसान किस तरीके का है। तो ऐसी अलग अलग फील्ड्स में भी आप कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी ऐसे हैंड है तो हैंड में भी ये काफ़ी लाइन्स होती है, इसके रिगार्डिंग भी स्टडी होती है, इसे पाल्मिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, जब हम ओपन रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। अगर हमने ऐसा कर लिया कि नहीं लॉ ही है, किताबें ही हैं और इसको कैसे पढूं, इतनी मोटी मोटी किताबें, तो जितना आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे नहीं यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी तो हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एडवोकेसी की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एडवोकेट आपको बहुत सारी फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मेडिकल में ज़्यादा नॉलेज है, अगर मुझे इंटरेस्ट है उसमें, तो बाद में आप चलकर उस पर मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आपको ओशन पानी के रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप मैरीटाइम लॉज में भी काफ़ी मास्टर्स कर सकते हैं। बाद में आप पीएचडी करें, पीएचडी करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अब पढ़ना ही है, तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो अगर आप ओपन रहेंगे सभी फील्ड्स के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम रैप अप करेंगे लेकिन एक हमारे इंस्पिरेशन के बारे में बात करके, सैली मैम। बिल्कुल लाइक अगर अभी हम ये वीडियो भी बना रहे हैं तो उनके वजह से, क्योंकि अगर मैंने सैली मैम के साथ वीडियो नहीं बनाया होता तो हमारी बात ही नहीं होती कभी। सही बात है। तो लाइक सी इज टू गुड यार, वो इंस्पिरेशन है हमारी। लाइक उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, लाइक वो एक ही पीस बनी है। सही बात है, सही बात है। और सैली मैम ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है कि कोमल तू छोड़ मत यूट्यूब, ऐसे कर बहुत कुछ, और ठीक है बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने एक चीज़ और मेरे को सिखाई कि लाइक तू जिसके साथ भी वीडियो बनाना उनसे फीडबैक ले तू, कि उनका क्या ओपिनियन है तुम्हारे लिए, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बता सकते हैं, तो तू मेरे को एडवाइस कर सकता है कि आप ये चेंजेस करो, या आपके लिए फीडबैक है, या आप ये अच्छा कर रहे हो। तो अच्छे पॉइंट्स भी और बुरे पॉइंट्स भी बताओ। हाँ अच्छा, तो मतलब जैसे कि हाँ शैली मैम के आप बारे में बात कर रहे हो तो सही बात है, वो तो मेरी भी इंस्पिरेशन है और मेरे को भी काफ़ी सीखने को मिला उनसे। जैसे आपने बताया कि आप जैसे मेरे से इंटरव्यू कर रहे हो,
तो कितनी अच्छी बात है कि आप मेरे ओपिनियंस और थॉट्स आप ले रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आपके अंदर एक स्किल्स है कि लिसनिंग स्किल्स। काफ़ी कबार ऐसे लोग होते हैं कि मतलब नहीं मुझे अपनी बात रखनी है, मैं रखूँगा, और वो सामने वाले को सुनते नहीं है। तो ये हमें स्किल्स कैसे पता चलती हैं? ये हमें पता चलती है कि अच्छा एक्सपीरियंस करने से और कैसे ऑब्जर्वेशन से। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक शैली मैम का सवाल है, तो मैंने भी मतलब जैसे है ना कि अभी मैं मैम से जब मिला था तो मेरे को पता चला कि मैम अपार्ट फ्रॉम उनको कितना फ्रेंच का कितना अच्छा नॉलेज है, इवन इंग्लिश में भी वो कितनी फ्लुएंट है। अपार्ट फ्रॉम डैट वो गिटार भी अभी सीख रही, बता रही थी, स्पेनिश भी कर रही हैं। तो हार्ड वर्किंग बहुत है, कितनी हार्ड वर्किंग है। और हम इतना एकदम यंग ब्लड, अगर हम ऐसा सोचें कि नहीं बिस्तर पर पड़े रहते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो इसमें तो फिर कोई सेंस नहीं होगा ना। आई मीन हमें मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ रखना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी कभी कभार मतलब वैसे पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में या किसी और ऐसे माहौल में करने से एकदम से मतलब हिचकिचाता हूँ कि यार ये कैसे करूँगा, पर फिर मैं अपने आप पर बिलीव रखता हूँ कि नहीं हो सकता है, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने तो मतलब शैली मैम से काफ़ी सीखी है कि बस अपने आप पर बिलीव रखो और करो, होगा, क्यों नहीं होगा। आपने अभी जैसे ये इंटरव्यू करा, कितना अच्छा जा रहा है, ऐसा अपन और इंटरव्यूज करेंगे, आप और अच्छा करोगी। तो मुझे आपके बारे में अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो आपकी जो टोन है, आपकी वाणी, वो काफ़ी अच्छी लगती है। जिस तरीके से आप अपने सवाल रखती हो उतना वो काफ़ी मुझे मतलब इंस्पायर करता है कि हाँ अपन अपने शब्दों से भी सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो काफ़ी कबार मतलब अच्छा साबित होता है। और बैड क्वालिटीज़ लाइक मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए? देखिए चेंजेस तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। जैसे काफ़ी कबार क्या होता है कि वैसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, पर बाकी ऐसे दुनिया इसको ऐसा मानती है कि जिसको इंग्लिश का नॉलेज है वो काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है और वो पता नहीं क्या कैरी करता है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। पर फिर भी आपको ऐसा मतलब आपको ही नहीं सिर्फ मेरे को भी, हर किसी को वर्क करना चाहिए, क्योंकि आज इंग्लिश काफ़ी ज़रूरत है। और बाकी तो मैं भी आपसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने आप में भी जो कमी है, आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे को मतलब कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं भी करूँगा। सोचना पड़ेगा यार। हाँ, ठीक है। मैं बताऊंगी कैमरे के बाद में, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, और तुम्हारे दोनों चीज़ों को मैं लूँगी। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, और मैं कम्युनिकेशन स्किल पे लाइक और भी न्यू वोकेबलरीज पे वर्क करूँगी, उसके लिए थैंक यू फॉर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लीगल वाइब्स।